Welcome dear friends again to my channel, your technical engineering consultancy tips. Today's lecture of mine is the 33rd in the series. Today I will be covering the subject topic soil investigation specifications for construction of airfield pavements, that is the runways, taxiways. बिकॉज आप देखते होंगे आज इंडिया की गवर्नमेंट का फोकस एयरपोर्ट डेवलपमेंट्स पे काफ़ी है, तो जस्ट आई थॉट कि मैं आपको एयरफील्ड पेवमेंट्स में नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन क्या है वो आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि एक टर्मिनल बिल्डिंग होती है, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और टैक्सीवेज, रनवेज या पेवमेंट्स आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एनी एयरपोर्ट. तो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू कवर दिस टॉपिक कि व्हाट वेयर मिनिमम investigation need be done before the construction of airfield pavements. So what do we need to have is, we do have to have a safe pavement who can serve its lifetime service by adequately, and for that very purpose it should have a adequate subgrade strength, and in order to have the adequate subgrade strength we need to evaluate the engineering properties of subgrade, and in turn what we need to do is we have to ascertain the suitable subgrade level, the depth of water table below that very proposed runway, the water bearing strata, and we need to assess the CBR value, that is the California bearing ratio value for flexible pavements, and modulus of subgrade reaction K value for rigid pavements. After that I have told you these 4 points. The fifth point is that we need to have the subsoil profile, that is the stratigraphy from below the formation level of the airfield pavement to at least 3.50 meter depth below that, or the refusal strata, that is the strata which is having adequate bearing strength, which may be rock also. So what need to be done? We need to check the engineering properties at various levels from beneath the founding level of the formation level of the pavement, and we need to check these engineering properties at the rate 0.50 meter, 1.25 meter, 2 meter and 3.00 meter from below the natural ground level existing prevailing at the site of the runway of the proposed airport. अब क्या है कि हमको कितने नंबर ऑफ टेस्ट कितने एरिया में क्या करना चाहिए, उसकी मैंने एक टेबल यहाँ बनाई है जो कि सभी एयरपोर्ट्स पे नेसेसरी होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो फॉर रनवेज एंड टैक्सीवेज द स्पेसिंग ऑफ द बोरहोल फॉर कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स शुड बी रैंडम अक्रॉस एट द रेट ऑफ 70 मीटर इंटरवल, एंड इफ इट इज अ कट एरिया we have to investigate to at least 3.50 meter depth below the finished grade, and if it is a fill area we have to do investigation from the natural ground level below the ground level to at least up to 3.50 meter below that particular. For other areas of pavement we need to have at least one borehole per 930 square meter of the area, and the depth of the investigation would be the same as above for the runways and taxiways. And आपको ये पता होगा कि कहीं अगर मान लीजिए फिलिंग करनी है आपको, तो आपको बोरोड अर्थ लानी होगी, तो बोरोड एरिया के लिए कोई स्पेसिंग का क्राइटेरिया नहीं है. इट शुड बी सफिशिएंट इनफ, एंड द बोरोड सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ डेप्थ व्हाटसोएवर नेसेसरी at that very particular site with reference to the prevailing site conditions. और बोरोड एरिया के सॉइल सैंपल पे भी हमें क्या होता है, CBR करना होता है. CBR से पहले हमें प्रॉक्टर टेस्ट करना होता है, और वो भी हमें मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करना पड़ेगा एयरफील्ड के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से. तो अब क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हमें, जिसके लिए हमने इन डेप्थ पे सैंपल्स कलेक्ट करें अनडिस्टर्ब सैंपल्स, उस पर हमें कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं, दैट इज
particle size analysis, track shear test or direct shear test depending upon the kind of the soil, whether it is a clay soil, cohesive soil or non-cohesive soil. Atterberg limits, liquid limit, plastic limit and plasticity index, swell index, shrinkage limit. Because अगर वहाँ कोई swelling प्रॉपर्टी की सॉइल है तो हमें अकॉर्डिंगली उसमें रेमिफिकेशंस या नीडफुल ट्रीटमेंट करके पेवमेंट ओवरले करना होगा, बनाना होगा. नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, परमिएबिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्ट्स विच में कॉम्प्राइज ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. ग्राउंड वाटर टेबल के भी हमें सॉल्ट्स चेक करने पड़ेंगे ताकि कोई कैपिलरी एक्शन से हमारा पेवमेंट पे कोई नुकसान ना हो आफ्टर द पेवमेंट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. बिकॉज हमारे इसमें बहुत टाइट हाईली स्टैंडर्डाइज्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसमें हमारा जिगजैग या कोई भी अनइवननेस अलाउड नहीं होती है पेवमेंट में इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ टेक ऑफ फॉर द एरोप्लेन्स. वी नीड टू चेक द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द सॉइल एज वेल एज द पॉइजनस रेशियो ऑफ द सॉइल. अब क्या है कि सीबीआर के लिए हमारा स्पेसिफिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, के वैल्यू के लिए स्पेसिफिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है और हमें के वैल्यू के लिए एयरपोर्ट्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि 75 सेंटीमीटर डायमीटर की सर्कुलर प्लेट यूज़ करनी पड़ेगी और 3 डायल गेजेस लगाने पड़ेंगे फॉर डिफ्लेक्शन मेजरमेंट्स, जिसके बेसिस में हम फाइनली ये वैल्यू मॉडुलस ऑफ डिफ्लेक्शन निकालते हैं जिसकी ज़रूरत हमें रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन में पड़ती है. और कोड ये भी कहता है एयरपोर्ट पेवमेंट्स का कि हमें मिनिमम 3 CBR टेस्ट ईच सॉइल टाइप के लिए करने ज़रूरी हैं. अगर मान लीजिए वहाँ 4 डिफरेंट तरीके के सॉइल मिलती है जिसको हमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स पे यूज़ करना है तो हमें 12 CBR टेस्ट करने पड़ेंगे. अदरवाइज एक ही तरीके की सॉइल अगर है तो हमें होल एरिया में मिनिमम 9 CBR टेस्ट स्पेसिफाइड्स हैं इन एयरफील्ड पेवमेंट्स के लिए. और ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज निकालने के, सबके मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट डिफाइंड आर 3. व्हाट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इन दिस वेरी केसेस कि कोड कहता है कि हमें अगर सीबीआर की वैल्यू 3 या 3 से कम है या के वैल्यू 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर % कम आती है इन टेस्ट रिजल्ट्स को करने के स्क्वायर से कम आती है इन टेस्ट रिजल्ट्स को करने के बाद, तो वी नीड टू गो इन फॉर सम रेमिफिकेशंस रेमेडी मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेवमेंट. कि हमें नेसेसरी ग्राउंड इम्प्रूवमेंट मेजर्स वहाँ अडॉप्ट करने पड़ेंगे उस एयरफील्ड पेवमेंट को सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की साइड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए. और अगर हमें वह रॉक में जाता है तो रॉक में हमें बोर रिकवरी, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन RQD, RMR रॉक मास रेटिंग, उसका यूनिट वेट, वाटर एब्जॉर्प्शन, पोरोसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द rock core sample, its shear strength parameters and the petrographic analysis is definitely needed to be done at the site. So dear friends, this is what I needed and wanted to explain you all, and these are the bare minimum specifications which need be strictly complied for before making any airfield pavements in India, because these are strictly the parameters and governing codes as specified by the Committee of the Airports Authority of India. होप कि हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी एयरपोर्ट में हम एयरफील्ड पेमेंट्स के लिए टेस्टिंग करने जाएंगे तो ये मेरे बेयर मिनिमम स्पेसिफिकेशंस हमें फॉलो करने. आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.